Department of Pharmacology and the Dr. Vittal Rao Vikhe Patel Medical College to give me this opportunity. Yes, करेन rather than guest lecture इथे तुम्ही एक सिनियर MBBS स्टुडंट तुम्हाला ॲज अ करिअर अपॉर्च्युनिटी म्हणून एक करिअर गायडन्स म्हणून एक काउन्सिलिंग लेक्चर होतं. या अर्थाने जर बघितलं तर हे लेक्चर ॲक्च्युली खूप तुम्हाला हेल्पफुल ठरेल when you pass your MBBS or other any undergraduate course you are going through. So, a gateway to careers in a drug safety and the regulatory science. इथे कोणाकोणाला फार्मॅको विजिलन्स हा शब्द माहिती आहे किंवा आयडिया आहे की काय आहे फार्मॅको विजिलन्स? यस, असं ऐकलं मी कुठून तरी. हा प्लीज, जे काही माहिती असेल ते मला डेफिनेशन नको आहे. एकतर उत्तर द्या नाही तर गप्प बसा. हा प्लीज. Correct. So she is saying this is a science which monitors or talks about the adverse drug reporting, right, and helps to prevent the one, right? That's it. So let's start with the today's presentation. So what is a pharmacovigilance? Aims and objective. Why pharmacovigilance? Regulatory science, regulatory framework in India, and the career development opportunities. So, pharmacovigilance. Pharmacon, again Greek word which means the drug or medicine, and the vigilare is the Latin word which says the to keep and watch. The academic definition of pharmacovigilance is the science and activities relating to the detection, assessment, understanding, and importantly, prevention of the adverse event or any other medicine or vaccine related problems, right? So we are detecting it, we are assessing it, and mainly we are preventing it. Now, what are the aims and objectives of this field? First, patient safety. That is the most important. So patient care and the safety. Then identify and reduce the risk associated with the medicines. Promote the rational and the safe use of the products or the medicines. And support the regulatory decisions and the policy making. अब ये सब करना क्यों है, right? So coming from the medical background, we know when the patient comes to us, उसको कुछ तो medicine देना है, उसको ठीक करना है. But there are always the side effects of the medicine which we don't take care of, right? कभी किसी ने आके पूछा है वापस पेशेंट को क्या साइड इफेक्ट होता है? नहीं. It's always the patient who is reporting to you. So there is a field which takes care of the all these parts. So the Moller says that to undergo a treatment, you have to be a very healthy, because apart from your sickness, you have to withstand the medicine as well. So it's not only the disease which you are going through, it's also a part of the medicine which are giving you the adverse event. That also you have to consider about, right? So all the medicines will be having the benefit and all the medicine will be having the risk. So the benefit almost has to be always more than the risk given by that particular drug. That is the acceptable one. Does anybody knows about this incident? Yeah, please. You can just tell, no? I think this is a very known incident. You're supposed to know. Thalidomide. What happened in thalidomide tragedy? Phacomelia. Right? What it is prescribed for? It was given commonly for the nausea caused in the pregnancy and the hypnotics in the pregnancy. Widely used drug in the 1960. ठीक है? तब ये concept नहीं था, pharmacovigilance and everything, right? And what happens? There is a lot of thousand or maybe more than that births which are having the congenital anomaly called as a phacomelia, right? But that happened in the 1960. You can see the central circle with the 1961, the thalidomide tragedy. The concept of the pharmacovigilance comes the way before, starting from the 1848. ठीक है? 1848 में क्या हुआ था? तब एनेस्थेशिया वगैरह ऐसे कुछ था नहीं. So chloroform is commonly used anesthetic agent at that time for the basically the dental procedure mainly. ठीक है? So that time there was a patient called as a Hannah.
She died because of the chloroform overdose, and that is the first time the safety concern of the drug was arose. उसके बाद 1936 में there is something called as a sulfonamide elixir. Now this is an antibiotic given typically in the streptococcal infection, but that time to improve the texture and the flavor of the that particular medicine, they come up with the more solvent called as a diethyl glycol, which is a highly poisonous drug that causes around 100 deaths at that time. Then in the 1938, always it's America, right? The first thing always happens in the America. So the America comes up with the US Federal Food, Drug and the Cosmetic Act, and they come up with the something called as a regulatory science कि नहीं भाई हम ड्रग दे रहे तो उसका एफिकेसी वगैरह ठीक है, हम सेफ्टी भी देखेंगे उसका कि हाउ मच सेफ दैट ड्रग इज फॉर द पेशेंट. Then the 1961 the thalidomide tragedy comes. So there is a part of the thalidomide tragedy you supposed to know that the US में ये cases कम हुए because तब तक वहाँ पे US में Federal Act आया था. So that drug was immediately banned in the US, whereas it was distributed in around 60 other countries. ठीक है, तो वहाँ पे डेथ कम हुए थे as compared to the rest of the countries. Then in 1962 again वो स्ट्रेन पकड़ा, देन यूएस एफडीए ने कुछ अमेंडमेंट किए उनके लॉ में. देन अराउंड 1940 WHO comes. I hope everyone knows about the WHO, right? Yeah. Then 1968 में there is something called as a international drug monitoring करके एक concept आया, which was launched by the WHO. Then 1978 में UMC Uppsala Monitoring Center and the EMA. EMA is the regulatory science for the European countries. ठीक है, that came up in the 1995. Now, why this regulatory science is important, right? I gave you the overview about what is the regulatory science. Now, again, patient safety is the primary aim. So, public health protection, that the product has to be safe as well as effective. Then the innovation, new tools, standards which accelerate the development and approval of the new and innovative products. So you guys must be knowing कि अभी insulin के nasal spray भी आते हैं because it's a painful. Every time patient cannot come with the syringe and take that, right? So something which will help the patient to improve his health as well as it should be easy to use, right? That also comes under the pharmacovigilance. Then the global harmonization. ऐसे थोड़ी चलेगा ना, अभी एमबीबीएस का भी आपका सिलेबस है तो पूरा एमयूएचएस का एक सिलेबस रहता है. ऐसे नहीं बोलेंगे ना हम अपने यहाँ पे हमें जो चाहिए वो सिखाएंगे, मैं वहाँ पे जो चाहिए वो सिखाएंगा. वही है सेम फॉर द फार्माकोविजिलेंस. ग्लोबल हार्मोनाइजेशन मतलब यूरोपियन कंट्रीज हो, आप यूएस में हो, आप इंडिया में हो, आप लैटम कंट्रीज में हो, एवरीवन हैज टू सपोज फॉलो सम फ्यू रूल्स एंड द रेगुलेशंस टुगेदर. So these are the regulatory bodies. I think you guys must be knowing it. So FDA, तो I told you it's in the US. EMA, anyone can just guess. European, correct. MHRA, UK. MHRA is for UK. PMDA, Japan, and CDSCO. Yeah, CDSCO is India. Why it is differently highlighted? Because next slide is gonna be about that, right? So yeah. So what is the pharmacovigilance in India? India मध्ये कधी concept आली pharmacovigilance. So that is in the 1986. PVPI. कोणी सांगू शकतो full form PVPI चा? Is the pharmacovigilance program in, right? It started with the 12 regional centers under DCGI. DCGI is mainly concerned about the drug and the medical device safety in India. 1968 में we joined with the WHO. So 1986 ला झालं ठीक आहे, पण ते फक्त इंडिया पुरती रेस्ट्रिक्टेड होतं. 1998 मध्ये आपण WHO च्या PIDM प्रोग्राम सोबत जॉईन झालो. 2005 ला नवीन नॅशनल PV प्रोग्राम लॉन्च झाले and it goes on and today we have a 567 AMC. AMC is a ADR monitoring centers, right? So पहले सिर्फ न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, only the main centers were having those. Now we have a 560 AMC centers throughout our nations. What is the role of this AMC? Monitor करेंगे. As the name suggests, they will monitor the areas. देखा ये फॉर्म किसी ने? Right? What is it? ADR reporting form.
What are the main eligibility for having this ADR reporting form? There are 4 criteria, right? क्या क्या होना चाहिए? अच्छा, पता भी नहीं होगा तो भी सोच के देखो क्या चाहिए मुझे एडीआर फॉर्म भरने के लिए. पेशेंट चाहिए, ड्रग चाहिए, ड्रग का कुछ साइड इफेक्ट चाहिए, और ये रिपोर्ट करने वाला कोई तो चाहिए, राइट? सो इट्स इजी. यू नीड अ पेशेंट, यू नीड अ ड्रग, यू नीड अ साइड इफेक्ट एंड यू नीड अ रिपोर्टर. ये 4 अगर आपके क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, यू कैन सबमिट द एडीआर फॉर्म, राइट? कौन कौन सबमिट कर सकता है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल, राइट? पेशेंट हिमसेल्फ, राइट? सो कोई भी जिसको भी पता हो, मैं हूँ, मेरे बहन को हुआ, इवन आई कैन रिपोर्ट. यू नीड नॉट टू बी अ पेशेंट फॉर दैट, राइट? कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है? AMC. और you can just report to your physician as well. That is also, he can just go through that link and he can do the work for you, right? Yeah. So what happens in India? So patient ने experience किया side effect, right? वो physician ने observe किया, आपने ADR fill form किया, right? That is your step 1. Step 2 में क्या होगा? वो form submit होगा आपके AMC center पे, ठीक है? Then that data is get entered into the VGFlow. What is a VGFlow? पोर्टल, WHO का पोर्टल, ठीक है? पर्टिकुलरली WHO का पोर्टल जो रहता है उसको हम बोलते हैं VGFlow. देन थर्ड कि ठीक है मेरे पास अभी सब डेटा आया, सो इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन, वी हैव टू असेस आल्सो दोज ADR, राइट? सो वी विल प्रोवाइड अ कॉजालिटी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज द वर्ड कॉजालिटी मीन्स? कॉजालिटी मतलब ये जो साइड इफेक्ट है वो ड्रग के वजह से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? मैं आके कल कुछ भी बोलूंगी, मैंने ये ड्रग लिया, मेरे को साइड इफेक्ट हुआ. नो, यू कैनॉट जस्ट ट्रस्ट ऑन दैट वर्ड, राइट? यू नीड सम एविडेंसेस टू शो दैट ये ड्रग के वजह से ही ये साइड इफेक्ट हुआ है. तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कॉजालिटी असेसमेंट, ठीक है? देन वो कॉजालिटी हम असेस करेंगे. देन द सिग्नल डिटेक्शन. सिग्नल क्या रहता है? अगर मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर ABC ड्रग है, उसके वजह से नौशा तो होता ही है, दैट इज अ वेल नोन साइड इफेक्ट. बट उससे अगर कुछ और होता है, द पेशेंट इज हैविंग स्ट्रोक और पेशेंट इज हैविंग कार्डियक अरेस्ट, दैट इज समथिंग आई एम नॉट अवेयर ऑफ, राइट? मेरे को नहीं पता. सो दैट विल कंसिडर एज अ सिग्नल. नाउ दिस इज समथिंग, इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? क्योंकि पहले वाली इंफॉर्मेशन पता थी, वो तो मैं बोलूँ, पेशेंट आके बोलेगा, मैं हाँ रे बाबा उससे होता ही है ये. समथिंग न्यू कम्स अप, दैट इज योर सिग्नल, ठीक है? देन ये जाके IPC, CDS को, WHO को रिपोर्ट होगा. दे विल गो थ्रू द ऑल द डेटा यू हैव सबमिटेड, और उसके ऊपर फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो ऑलरेडी नोन करके आपका एक लेबल करके बोलते हैं, हर एक ड्रग का लेबल आता है कि जिसमें लिखा हुआ रहता है कि ये ड्रग से क्या क्या साइड इफेक्ट होगा. वो लेबल अपडेट करना है क्या कि ये ड्रग से अभी ये एक्स्ट्रा ये भी होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे थैलेडोमाइड हुआ था, फैकोमेलिया, नाउ इट इज अ वेल नोन, बट फर्स्ट टाइम जब हुआ था तब वो पता नहीं था. सो दैट विल बी समथिंग कॉल्ड एज अ लेबल अपडेट. ड्रग विड्रॉल. विड्रॉल, इफ यू रिमेंबर इन द कोविड में अचानक से थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स ज़्यादा हो रहे थे, पेशेंट को स्ट्रोक बैठ रहे थे आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन, राइट? सो वैक्सीन, फ्यू वैक्सीन्स वेर बैंड, फ्यू वैक्सीन्स वेर विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, राइट? सो ये सब कहाँ से आता है? ये WHO, CDSCO और एनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज कंसर्न फॉर दैट पर्टिकुलर नेशन, ये सब वो रोल लाते हैं कि सिर्फ लेबल अपडेट करने से काम होता है नहीं, मेरे को मार्केट से अभी के अभी प्रोडक्ट बाहर निकालना है या क्या करना है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग, this is common framework followed in the all the nation, but the terms used as a CDSCO, AMC, VGFlow, that is very particular about the India, ठीक है? Any queries till now? Okay. So फार्माकोविजिलेंस क्या करते हैं ये फार्माकोविजिलेंस वाले लोग, right? So there is something called as a adverse drug reporting, as we have already gone through that, कि जो report आएगा we have to enter that data into the VGFlow or other e-reporting system. Signal detection and analysis, I have covered that part also. Case processing. अभी ये जो ADR फॉर्म है ना, इसको हम ICSR बोलते हैं, राइट? इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट. तो वो कलेक्ट करना, वो रिव्यू करना, कोडिंग करना, मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मेड्रा डिक्शनरी करके रहता है. तो पेशेंट अभी हर एक लैंग्वेज में अलग अलग बताएगा, राइट? बट वी नो सम पर्टिकुलर मेडिकल टर्म फॉर दैट, लाइक नॉशिया,
vomiting, we have to code that particular term into that database. Then only it will be easy for us to assess, right? You cannot keep on going with the different words for the different symptoms, right? So उसको कोडिंग बोलते हैं. And entering the case data. Risk management, that is something a very interesting concept. तो फॉर एग्जाम्पल थैलेडोमाइड का ही लेते हैं कि हमें पता चला कि फेकोमिलिया हो रहा है पेशेंट को. सो ये रिस्क तो हमें अभी पता चला भाई, आगे क्या करना है. फिर भी ये रिस्क मेरे से मैनेज हो रही है एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, या पूरा ड्रग बंद करना है. तो नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप विथ सम आइडिया. फॉर एग्जाम्पल कोई मैं अगर बीटा ब्लॉकर देती हूँ हाइपरटेंसिव पेशेंट में, आई नो कि उसमें हाइपोटेंशन होने ही वाला है. सो व्हाट आई विल डू, आई मॉनिटर द डोज. आई टेल द पेशेंट कि भाई 4-4 घंटे के बाद यू हैव टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर. सो दिस इज समथिंग इज कॉल्ड एज अ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क तो आपको पता है कि पेशेंट को हाइपोटेंशन होने वाला है. हाउ यू गोना मैनेज दोज रिस्क. फ्यू एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं उसकी वजह से डायरिया होता है, सो यू शुड बी टेलिंग पेशेंट इन एडवांस कि हाँ ये लेने के बाद आपको थोड़ा गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, तो यू शुड बी रेडी. तो आप पेशेंट को अवेयर कर रहे हो, आपको अगर पता है कि वो रिस्क कहाँ तक लाइफ थ्रेटनिंग हो रही है नहीं हो रही है, वो हिसाब से आप पेशेंट को खुद को प्रिपेयर कर रहे हो. तो उसका भी एक प्रोटोकॉल रहता है हर एक मेडिसिन के लिए. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है. देन इम्प्लीमेंटिंग दोज रिस्क मिनिमाइजेशन मेजर्स. ठीक है. Now this part comes when there are drugs like opioid or something or the clozapine कि जहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन के वजह से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यू कैनॉट गेट द ड्रग, राइट. ये भी पार्ट ऑफ रिस्क मिनिमाइजेशन मेजर, बिकॉज हमें पता है कि अगर लेमैन को नहीं पता है ये ड्रग लेने से कितना साइड इफेक्ट है या उससे ही कैन गेट एडिक्टेड, ही कैन हैव अब्यूजिव एंड मिसयूज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, हम उसका प्रिस्क्रिप्शन रिस्ट्रिक्टेड ही हम उसको मार्केट में देते हैं. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिस्क मिनिमाइजेशन मेजर. एंड द रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, सबमिटिंग रिपोर्ट थ्रू द सीडीस्को एंड ईमा. नाउ ये सब हम बना रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग का स्लाइड याद रहेगा, बेनिफिट एंड द रिस्क. सो ये हमें पता है, अपने कंपनी को पता है, जो ड्रग बना रही है उसको पता है. ये रेगुलेटरी अथॉरिटी को कैसे पता चलेगा, राइट. सो यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट. पीरियोडिक रिपोर्ट्स बनाते रहते हो आप, उसमें आपको सब डेटा डालना होता है, असेस करना होता है और बताना होता है कि नहीं भाई हमारा ड्रग के बेनिफिट्स ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रिस्क. ठीक है. तो ये जो सबमिटिंग रिपोर्ट्स हम बोल रहे हैं, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल बिकॉज वो बहुत ही हेवी हो जाएगा तुम लोगों के लिए. तो द जिस्ट इज कि वैसे रिपोर्ट हमें पीरियोडिकली आपको सबमिट करना पड़ता है टू कीप द लाइसेंस ऑफ द ड्रग अलाइव. ठीक है. ऐसे नहीं कि एक बार लाइसेंस मिला तो आप करते जा रहे हो, नहीं. यू हैव टू रिन्यू दैट लाइसेंस लाइक ईयरली, 2 ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज. ओके. Now, the main focus of the today's lecture, the career development opportunities. Case processor, medical writer, quality assurance team and the medical leaders. अभी ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है. हर एक कंपनी के, हर एक कंट्री के अपने अपने अलग फैंसी नेम रहते हैं. ठीक है. बट दिस इज व्हाट इज द आइडिया गिविंग कि व्हाट इज गोना बी योर जॉब डिस्क्रिप्शन. The educational criteria for the case processor, medical writer and the quality team, you have to be a graduate in the pharmacy, any life sciences like a BS and everything, medicine or the PharmD people. Medical reviewer, you have to be one of the medics, MBBS, MD or any allied medicines like a BMS, BHMS. What are the job description? As I said, so case processor का क्या रहता है. So ADR report हुआ. Now we said कि VG flow में enter करेंगे. कौन करेगा, कैसे करेगा. मैं अगर कोई विदाउट साइंस बैकग्राउंड का पेशेंट है उसको बोलूँगी जाके डेटा एंटर को, उसको वो टर्मिनोलॉजी समझने में ही टाइम जाएगा, राइट. यू वोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट. सो वो डेटा एंट्री पार्ट, वो पीयर रिव्यू, लिटरेचर सर्च, अलग अलग आप लिटरेचर पढ़ते हो, आई थिंक जर्नल क्लब वगैरह होते होंगे, आई डोंट नो. प्रेजेंटेशन होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि कोई तो जाके पेपर पब्लिश करता है, राइट. तो ये पेपर पब्लिश इज समथिंग इज कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ अ लिटरेचर. तो लिटरेचर में आता है कि ऐसे स्टडी है, वैसे स्टडी है, तो वो रिपोर्ट भी हम विजी फ्लो में एंटर करते हैं. तो वैसे लिटरेचर सर्च करना और वो सब फॉर्म फिल होने के बाद केस सबमिट करना, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ केस सबमिशन. दैट इज अ पार्ट ऑफ अ केस प्रोसेस. मेडिकल राइटर्स क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला था, वो रिपोर्ट्स जो हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भेजते हैं, वो रिपोर्ट्स के एक डिफाइंड सेक्शन रहते हैं कि भाई कौन से ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से साइड इफेक्ट हमें पता है, कौन कहाँ कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मार्केट हो रहा है,
वहाँ का पॉपुलेशन कौन सा है, उसमें कौन से साइड इफेक्ट है, नए कौन से मिले, मेडिकेशन एरर कौन सा है, क्या है, ये सब के डिसाइडेड सेक्शंस रहते हैं। फाइनल एक कंक्लूजन रहता है, उसका एक टेम्पलेट बनाया हुआ रहता है। ठीक है, वो टेम्पलेट जो रहता है उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बनाना होता है। वो रिपोर्ट का ड्राफ्टिंग इंक्लूडिंग अगेन वो रिपोर्ट में जो भी केसेस जाएंगे उसका सब नरेटिव्स, एग्रीगेट रिपोर्ट्स बोलते हैं हम उसको, रिस्क आरएमपी है रिस्क मिनिमाइजेशन प्लान जो अभी हमने बात किया था 2 मिनट पहले, वो सिग्नल, ये रिपोर्ट ड्राफ्ट करने का काम इज समथिंग इज डन बाय द मेडिकल राइटर्स। क्वालिटी टीम आई विल कम आफ्टर, आई विल फिनिश फर्स्ट द मेडिकल रिव्यूअर। अभी मेडिकल रिव्यूअर का क्या काम है, ये सब रिपोर्ट तो बना, बट उसका जो मेडिकल कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग सम मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग, वो कितना करेक्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है मेडिकल एक्यूमेन में विद द ड्राफ्टर और द ऑथर्स हम बोलते हैं उनके और मेडिकल रिव्यूअर के इसमें। सो वहाँ पे कहाँ पे फाइन असेसमेंट आपको लग रहा है क्या? कॉजलिटी असेसमेंट इज समथिंग अ वेरी पर्टिकुलर अनस्पेसिफिक टू द मेडिकल रिव्यूअर्स। तो जो फाइनल कॉल रहता है कि ये साइड इफेक्ट आपके ड्रग के वजह से हुआ है या नहीं हुआ है, दैट वुड बी टेकन बाय द मेडिकल रिव्यूअर। ठीक है, तो वो सब में चाहे वो सिग्नल हो, रिस्क मिनिमाइजेशन हो, सेफ्टी रिपोर्ट्स हो, वो सब काम करता है मेडिकल रिव्यूअर। नाउ विल कम टू द क्वालिटी टीम। ठीक है, अभी मेरा खुद का कंपनी है, मैं 10 ड्रग बना रही हूँ, मैं खुद से रिपोर्ट सबमिट कर रही हूँ, बट जब रिपोर्ट सबमिट रेगुलेटरी को हो रहा है तो ठीक है, वो खुद देख रहे हैं, वो मेरे पास वापस आ रहा है। बट मीन वाइल वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई कंपनी, उस पर चेक कौन रखेगा? यू हैव अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, राइट? मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द टीचर ऑल्सो टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग। तो आपके बैचेस रहते हैं, राइट? ABCD बैच रहता है हर एक का, उसमें हर एक का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है। ही विल टेक केयर ऑफ द कि हाँ बाबा जर्नल सबमिट किया है या नहीं, जर्नल कंप्लीट किया है कि नहीं। इज द सेम थिंग, अपना खुद का कंपनी का एक क्वालिटी टीम रहता है, दैट हैज टू बी अ न्यूट्रल। ऐसे नहीं है, मतलब दैट्स मे बी अ रॉन्ग एग्जाम्पल कि आप बोलते हैं ना नहीं चल कल सबमिट करता हूँ, दैट कांट हैपन हियर। ठीक है, यू दैट हैज टू बी अ वेरी न्यूट्रल पार्टी। ठीक है, तो वो आपका क्वालिटी चेक करेगा रिपोर्ट्स का, वो देखेगा कि सेम टाइम पे कर रहा है। सो कैसे रहता है ना कि अगर मुझे रेगुलेटरी को 10 तारीख पे देना है, बट मेरा खुद का इंटरनल टाइमलाइन 5 तारीख है, इट हैज टू बी डन बाय 5। रेगुलेटरी आके चेक नहीं करेगी कि आपने 5 को किया है नहीं, कौन करेगा? ये क्वालिटी टीम करेगा, राइट? सो उसके बीच बीच में ऑडिट रहते, वो अचानक से उठ के बोलते हैं कि चलो दिखाओ अभी तक का डेटा कहाँ है करके। सो एवरीथिंग इज ऑन द प्रोसेस, जो अपने अपने टाइम पे हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। ये सब कौन चेक करता है? क्वालिटी टीम। और उसके लिए भी द पीपल कम्स फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड इटसेल्फ, क्योंकि उनको वो नॉलेज होना चाहिए, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन थिंग, राइट? Then these are the career opportunities and the growth as you move forward. So entry level, again these are the terminology which are commonly used, but हर एक कंपनी के अपने अपने नॉर्म्स रहते हैं। ठीक है, so case processor, drug safety, medic, the last line is particular to the medics and the first two can be a pharmacy people or the other allied medicine people. ठीक है, so drug safety associate, case processor, medical reviewer, ये सब जो रोल है जो मैंने इनिशियली आपको जो समझा है, it's an individual contributor role. As you move to the mid level and the senior level, you start handling a team. So for example, if I am a medical reviewer, अभी मैं mid level पे जा रही हूँ, तो I will having a team which is working for particular therapeutic area. Now what does mean the therapeutic area? कि ऑन्को के ड्रग्स रहते हैं, कार्डियक के ड्रग्स रहते हैं, रेस्पिरेटरी के ड्रग्स रहते हैं, so these are the different therapeutic area. तो मैं अब खुद रिपोर्ट नहीं रिव्यू कर रही हूँ, बट आई विल बी हैंडलिंग द होल ऑन्कोलॉजी सेक्शन, कि जहाँ पे मेरे कंपनी के पूरे ऑन्को वाले ड्रग्स है, वो सब ऑनलाइन है ना, उसके सब रिपोर्ट्स ऑनलाइन है ना, और वो सब काम अच्छे से हो रहा है ना। ठीक है, एंड इफ समवन कम्स अप विद द क्वेरी, आई शुड बी हैविंग द डेप्थ नॉलेज अबाउट इट। दैट इज अ मिड लेवल। एंड द सीनियर लेवल, आपके अंदर अभी प्रोजेक्ट आने लगे हैं, सो एरिया भी नहीं है। सो व्हाट हैपन्स कि एक पूरा प्रोजेक्ट आता है, कोई नया कंपनी या नया ड्रग आता है, सो यू हैव टू हैव अ डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम फॉर दैट। सो सीनियर लेवल पे आप वो लेवल पे काम करते हो। इट्स नॉट लाइक कि ओनली द मेडिकल रिव्यूअर विल हैव दैट। आई हैव माई मैनेजर्स विच आर नॉट फ्रॉम द मेडिक बैकग्राउंड, they are from the pharmacy and all. It's about the experience and the knowledge you gain through the whole your experiences thing. ठीक है, what are the skills required? As I said, you supposed to have a strong pharmacological and the clinical knowledge, good documentation and the communication skill, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल रेगुलेटरी गाइडलाइंस। अभी कैसे होता है, हर एक कंपनी का अपना अपना नॉर्म्स रहता है,
और जो रीजन में, जैसे मैंने बोला यूरोपियन हो, यूएस हो, इंडिया हो, हर एक के अपने अपने रेगुलेशंस थोड़े बहुत वेरी करते हैं। तो जो मार्केट के लिए आप काम कर रहे हो उसके रेगुलेशंस आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए. सो दैट इज समथिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्लोबल रेगुलेटरी गाइडलाइंस. What courses you can do to enhance your employability, right? Certificate or diploma in pharmacovigilance and regulatory affairs, clinical research or PV integrated programs, ICS, GCP, these are like a good to do. It's not a must thing. जो आपका अभी जो ग्रेजुएट डिग्री रहेगा दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू एंटर इनटू दिस फील्ड. These are the additional qualification which might highlight your CV or increase your depth of the knowledge. Okay? Now why? सो ग्रोइंग डिमांड है, जैसे मैंने बोला अभी तक फॉर मी ऑल्सो जस्ट बिफोर आई थिंक 2 weeks बिफोर ज्वाइनिंग द फार्माकोविजिलेंस आई कम टू नो अबाउट द फार्माकोविजिलेंस. वेरी फ्रैंकली नहीं पता रहता है कि डॉक्टर्स या मेडिक्स का ये भी रोल बाहर मार्केट में है. एवरीवन नोस कि हाँ पेशेंट को ट्रीट करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है. नहीं, पेशेंट ट्रीट करने से बहुत पहले से हमारा रोल चालू होता है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द पेशेंट सेफ्टी. एंड व्हेन वी टॉक्स अबाउट द पेशेंट सेफ्टी, तो जो ड्रग हम पेशेंट के दे रहे हैं वो भी कितना सेफ है वो देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? सो ग्रोइंग डिमांड ड्यू टू द ग्लोबल ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन, द इंडिया एंड द फिलीपाइंस इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर द फार्माकोविजिलेंस. ठीक है, तो अपने यहाँ पे अभी ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है. देन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द क्लिनिकल, रेगुलेटरी एंड पब्लिक हेल्थ रोल्स. सो व्हाट डज दैट मीन? तो अभी तक हम बात कर रहे थे कंपनी लेवल पे, ठीक है, बट कल जाके आपको देर आर डिफरेंट ब्रांचेस आफ्टर MBBS. यू मस्ट बी नोइंग लाइक PSM इज द वन ऑफ द ब्रांचेस. दोज पीपल माइट ऑल्सो वर्क इन द WHO ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. तो उसका फ्यूचर वो भी रहता है. ऐसे नहीं कि आप सिर्फ कंपनी रिलेटेड रोल रहे, जितना आप आगे जा गए तो यू कैन वर्क इन द रेगुलेटरी एंड पब्लिक हेल्थ रोल्स एज वेल. क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर विथ R&D, QA एंड द मेडिकल अफेयर्स. सो नाउ दीज थिंग्स समथिंग इज अ प्री क्लिनिकल. अभी तक मैंने जो बात किया था वो किया था ड्रग मार्केट में आने के बाद वाला, है ना. ड्रग को अप्रूवल मिला है, उसके बाद वो मार्केट में आया है एंड देन आई एम सीइंग द सेफ्टी. बट उसके पहले भी देर आर समथिंग, आई थिंक इट्स अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट्स, राइट? सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल फेजेस एंड ऑल, राइट? तो वहाँ पे भी हमें मेडिकल रिव्यूअर या पीपल फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड रिक्वायर्स, क्योंकि वो ड्रग मॉनिटरिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है या नहीं, डोसेस फॉलो हो रहे हैं नहीं, ये सब देखने के लिए भी वो रहते हैं. उसके भी अप्रूवल के लिए भी यू नीड टू सबमिट द रिपोर्ट्स. वो सब रिपोर्ट्स का भी ड्राफ्टिंग रहता है, उसका भी डेडलाइन रहता है, राइट? वो सब के लिए भी देर आर द डिफरेंट पोस्ट. समथिंग कॉल्ड एज अ रेगुलेटरी अफेयर करके अलग से डोमेन रहता है, ठीक है. दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. आई एम नॉट गोना गो इनटू डीपर ऑफ दैट, ठीक है. तो वो एक अलग से भी आपको ब्रांच है. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक इनटू दैट आल्सो, ठीक है. एंड द इंटरनेशनल करियर पोटेंशियल. सो देखो ऐसे नहीं है कि मैं इंडिया में काम कर रही हूँ तो मैं इंडियन कंपनी के लिए काम कर रही हूँ. माई ओन कंपनी इज द कैनेडा हेल्थ बेस, ठीक है. सो यू कैन वर्क फॉर द डिफरेंट मार्केट सिटिंग फ्रॉम द इंडिया इटसेल्फ. यू ऑल्सो अबाउट गेन द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट कंट्री में कौन से रेगुलेशन फॉलो होते हैं, कितने स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं. क्योंकि इंडिया कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज एंड द अदर रीजन्स थोड़ा पीछे है, ठीक है. दैट माइट हेल्प टू मे बी आप इंडिया को आगे लाने के लिए थोड़ा हेल्प कर सकते हो. सो यू कैन थिंक इन दैट वे ऑल्सो. यू कैन जस्ट गेन दैट नॉलेज एंड देन यू कैन जॉइन द इंडियन कंपनी एंड you try to impart that knowledge into that particular Indian company. So international career potential, ये आप अगर हायर लेवल पे जाते हैं यू गेट अ अपॉर्चुनिटी. दोज पीपल ऑल्सो कॉल यू इन देयर कंट्री बिकॉज जैसे मैंने बोला रेगुलेटरी अफेयर्स है. आप यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकते कि वहाँ पे कौन सा ड्रग चलेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पॉपुलेशन का अलग कुछ तो रहेगा. सो वो स्टडी आपको वहाँ पे जाके ही करना होता है. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी they will be calling you there. So that's why the international career potential. So I think that's it about it. If there are any questions, please go ahead.